Let me start. Fine. Let me do a live on Facebook as well, so that we can continue. Share on my timeline. Yes. Just a second. Give me some time. थोड़ा सा लाइव करने से उचित रहेगा. हिंदी इंग्लिश मिक्स रखेंगे, कभी कभी हिंदी कभी कभी इंग्लिश, ऐसा करके जिसमें भावना प्रकट हो वैसा करेंगे. एंड इफ यू आर अ हिंदी पर्सन listening to it, be sure that whatever I am saying in Hindi, if it is very important, I will repeat it in English also. Okay, just a second, updating the description. Superb. Right. So every successful movie gets a sequel because it was commercially successful. If you know me personally, you know that I don't work for success. I work for self-satisfaction. This is the, just a second, Pradeep ji, I will come to your question. Yeah. I work for self-satisfaction. I don't work for any success or anything like that, right? We do it because we love it. We don't do it because we want something out of it. You know, Jyotish for me is love. तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं प्यार करता हूँ क्योंकि तुम गोरी हो, काली हो, मोटी हो, पतली हो. No, no, no. Whatever. Wealth is one such area which I think is a problem for many. Basic roti kapda makan. Roti will come from paisa. Kapda will come from paisa. Makan will also come from paisa. Right? Jar joru jamin तीनों का समस्या तो person है. So I did a Tithi and Wealth Remedies part 1. This is the part 2 or something is okay. This is the part 2. We'll talk about some more remedies for Tithis, and not only exclusively for Tithis. It will be a short half an hour thing on Tithis only. After that, I will go to other remedies as I told to Vikas yesterday as promised. I'll do that. And specifically targeting how we remedy something, like how do we astrologically remedy something. You should understand something. There are 3 types of things if you take my approach. One is general remedy, one is astrological remedy, one is experience based remedy. Many people may not be aware of it. No problem. Normal remedy is more or less like, you know, this mantra. That mantra is known for giving patni, wife. General remedy. Astrological remedy can be altogether different based on the analysis of the chart. Experience remedy is something completely different. That is, you know, something that I have just wear a shirt which I used to wear some 4 years ago, and I've been fat. So this is a bit tight. So I will have problems with this. So just bear with me. Third thing is experience based remedy, right? Suppose I found that this certain mantra at this time gives this type of result. I will tend to recommend that to person. These experience based remedies are very rare. The astrologers giving remedies generally don't do remedy themselves or are not or don't have a good foundation. So as Sumit ji said,
that when Sumit ji came to me, he argued a lot about, you are not giving any sutra. Many of my students for the first 6 months will think that I am not teaching them anything. That's very true. When you get the understanding, you can use it in any way. Mars and Rahu, whichever house they aspect together, person will get beaten there or will beat there. You can apply this rule only in that chart where Mars and Rahu is either conjoined or having a mutual aspect. Out of the complete population in the world, only 30% horoscopes it is going to work. How many sutras you are going to remember, my friend? Tell me something. I saw a video, the karma for this ascendant, that ascendant, people are appraising a lot because that is your ascendant. You are an astrological consumer or an astrological learner. Understand it. Consumer is something else. Consumer consumes the thing that is applicable to them. Right? I have Gemini Lagna. I have this thing. It is working. Very good, sir. Okay, fine. You are consumer, not learning. Everyone will not be a Gemini Lagna. Try to understand it. I am not doing astrology for consumer. If I am teaching, it is for students. If you are a consumer, I am very good in consultations, right? First thing, this. Secondly, this is I call the Chamatkar Jyotish, right? I talked about it in the Rashi course also. Let me talk about it also. What is the difference between astrology and mesmerism? Let me confess some dark secrets of my life. Whenever someone tells me that I don't believe in astrology, I will generally tell him few things, the color of your undergarments, etc., etc., size of penis, whatever you ask me, I can do anything. Astrologically with shlokas, the person gets mesmerized. But remember, बंदर बंदरिया का खेल नहीं दिखा रहे हैं कि पहले नचाएंगे बंदर बंदरिया को फिर ऐसे टोपी उतार के बोलेंगे भैया पैसे दो. No, what we are doing is astrology. In a consultation, if you are coming to me and if you are telling me, sir, tell me my past event, I will tell you past event for 1 hour, will tell you money exhausted, now pay me thrice the amount, take new consultation, then we will talk about future. Simple as that. Right? We see mesmerism is altogether different. Try to understand it. Astrology is about predictions and guidance, not about how things happen, what things happen. And specifically this practice, giving the screenshot of my predictions. Whenever I sit in a consultation, client for in a 1 hour consultation, for 15 minutes, he will be saying, bang on, sir, good, sir, right, sir, okay, sir, what should I do? Cut all that clip and put it over Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter. See, a person sent me congratulations on your predictions, sir. You will congratulate me when it happens once in a blue moon. Brother, it happens daily. So you should write me, sir, good morning, congratulations every day. At least 2-3 times a day you should write, right? Because it happens every day, right? It is not a chance that by chance I got it, so you're giving me congratulations. That should not be the thing. My point is, see, why I am not telling you कि अगर सास और बेटी के बीच में झगड़ा होता है तो एक कटोरी में दही को भर के उसको मिट्टी में दबा दो. You have to understand, आप समझिए कि ज्योतिष कैसे काम करता है समझ में. और जो उस चीज के बारे में मैं भी बात कर रहा था, सूत्र में और समझ में वही फर्क है जो मैकेनिक और इंजीनियर में फर्क होता है. आपको बखूबी फर्क मालूम है ना, इंजीनियर क्या होता है, मैकेनिक क्या होता है. क्या हुआ, मैं अपने मामा जी से बात किया करता था, तो मामा जी ने मुझे बोला कि इंजीनियर बन जा. मैंने कहा अच्छा, यू आंसर मी वन थिंग, फिर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा. आई विल कंसीडर दैट आई शुड बिकम एन इंजीनियर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिक एंड इंजीनियर? मालूम नहीं. 80% लोगों को मैकेनिक और इंजीनियर का फर्क ही मालूम नहीं. इंजीनियर कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है. इंजीनियर नट बोल्ट लेके गाड़ी नहीं बनाता, कॉन्सेप्ट बनाता है. एक समुद्र पे जिसकी गहराई नहीं पता, पानी का वेव टाइड कितना आएगा नहीं पता, उस 2+2 इज मैकेनिक, 2+x=5 इज इंजीनियर. ये फर्क है. जब ज्योतिष प्रारंभ कोर्स चालू हुआ तो एक लड़के ने एडमिशन लेने के लिए फोन किया, बोला सर आपके कोर्स से क्या उम्मीद करूं? मैंने कहा इंजीनियर बनना.
मैकेनिक बनने को उम्मीद मत करना। जो लोग मुझसे पैसे वापस मांगते हैं सब मैकेनिक ही बनने आते हैं। मैं भैया मैकेनिक बनाता ही नहीं, सिर्फ इंजीनियर बनाता हूँ। मैकेनिक बनाने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन है, नाम में किसी का लूंगा नहीं, बहुत है। ऐसी चीज सीखने में आपको 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह इस्तेमाल होनी चाहिए ना साहब। विथ a small example I will continue with my topic. My guru told me 64 rules for a Rashi. I covered it in Rashi basics also. So 64 rules of a Rashi for a Rashi. Out of those 64 rules, 28 I gave in my mastering the Rashi course. That is only 18 hours. And you know what? Let me tell you something. What I am teaching, what I am not teaching, and what can be taught that I am not teaching. Aries is lorded by Mars. Mars is an aggressive planet. So whichever house Aries will be, you will be aggressive in that house. Is it a Jyotish? I laugh because you think all the 125 crore population can be divided into 12. May God save you. I don't think so. The number is huge. What I taught in the course. Let me give you 1, 2, 3 rules. Just 3, 4 clubbed rules together. My guru, while telling me how Rashi's work, told me something. Sthan Bala for Lagna Lord should be considered seriously. Where the Lagna Lord is exalted, where the Lagna Lord is, and a great astrologer, I don't want to take a name, it is a Facebook live session, was into my guru's Yahoo group. He stolen the things, teaches in his classes, made a video, wrote that it is a cursed video, so I will take it down. The money that you are making, is that not a cursed money? बीवी छोड़ के तो भागेगी ना, ऐसे कांड करोगे तो भैया। फिर लोग चिल्लाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स आर हेवीली इनटू तंत्रा। नो वन इज इन तंत्रा ब्रो, नो वन इज इन तंत्रा। अपनी गिरेबान में से झांकिए, फिर दूसरे को बोलिए। Whatever. This thing they stole, right? Exalted, debilitated. Common, very, very common. Let me take a custom ascendant. Which ascendant I rarely take? Pisces. I rarely take. The Lord of Pisces is exalted in the 5th house. Happiness with children, etc. should be there. Children will not be many. Wherever Lagna Lord is exalted, by his vitality, he will destroy the house. That is okay. I can do 2 things. Either I can teach this rule that check the house where the Lagna Lord is exalted. Check the house where his Lagna Lord is debilitated. Check the house Lord who is exalted in the Lagna. Check the house Lord who is debilitated in the Lagna. And then it will give you result. I teach this way, making you an engineer. Other person will tell you, Aries Lagna person will have a problem in personal life. You will keep on making notes, 20 pages, 30 pages, 50 pages, you will remember none of them. Very simple thing. For Aries Lagna, Lagna Lord is debilitated in the 4th house. As simple as that. What I am giving you is a capsule that you can use for all the 12 ascendants, in all the 16 divisional charts, in all the 300 dashas, every time, everywhere will work without any problem. That's why I am making an engineer, not a mechanic. वो मैकेनिक लिस्ट निकाल लेता, जब मारुति सुजुकी 800 में कौन सा हेडलैम्प लगता है, पागल है क्या? That's the problem. Let me tell you now. People teach this, right? But let me tell you something. For Aries ascendant, Lagna Lord is exalted in the 10th house. Fine. 10th Lord is debilitated in the ascendant. Now what? What you should say, good or bad? That's the problem. You're a mechanic, you don't know. Ask my Rashi student, they will tell you. For Aries Lagna, 10th house is Digbali.
hence the good result of 10th house will come, and anyone having Aries Lagna will be prominent in profession. But is the result for Lagna? No. Check the chart of people having debilitated Saturn and how exalted, how brilliant they are in their profession, and then you will understand how it is used. Otherwise, you will not understand. But the problem is mechanics don't know that Lagna Lord is exalted in the 10th house, 10th Lord debilitated in Lagna. क्या करें? तेरे घर के पीछे तालाब है, ये क्या हो रहा है अभी? क्या चल रहा है? गूगल मैप में ही लोकेशन देख ले भैया, छोटा सा एप्लीकेशन है ट्रैकिंग का, 200 रुपए की पेड मेंबरशिप मिलती है, उसमें उतना क्या माथा पच्ची करना भैया। मेस्मरिज्म के धंधे में नहीं है हम लोग, ध्यान रखिए इस बात का। ज्योतिष के धंधे में, बिजनेस ऑफ गाइडेंस, मेस्मरिज्म नहीं है। क्या हुआ, एक हमारे मित्र ने ना एक वेबसाइट का एड्रेस भेजा सुमित जी को, कुछ नाम था, नाम नहीं लूंगा। सुमित जी ने अप्लाई वगैरह किया तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। एक महिला मित्र को उन्होंने नंबर दिया, बोले कि हम तो जी एस्ट्रोलजर्स को महीने का 10 लाख रुपया पे करते हैं डेली 2 घंटा बैठने का। मैंने कहा पूछ ले, कपड़े पहन के बैठना है उतार के? जैसे बोलेगा वैसे ही बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, पैसे भिजवा देना भाई। We are not into this thing, right? Why I am telling you this? Many of you people have started following me. Many people know about me technically, but why I don't have comments or anything? This is the thing, right? For a simple reason. I am giving you a food for life. You take one video, you will take 5 years to understand it, 5 years to try it, lifetime to predict. One investment is a serious investment. I don't sell product. In consultation, I am selling your product. In a course, I am selling an FD. पैसा आज लगाओगे, रिजल्ट 10 साल बाद मिलेगा. That's the reason I give refund anytime. Because it is not a one-time play. Let me tell you, you purchase something today, you will use it for a lifetime. What happens in astrology? Let me tell you this basic knowledge. Aries is this, that. Do you think no astrologer knows it except the one who is teaching? Do you think so? Are you so dumb to think that no other astrologer in the world know this? मतलब क्या भगवान के श्री श्री 1008 विष्णु अवतार हो गए हैं? No, every astrologer knows this. Why they don't teach? Because as you will progress in astrology, you will find that this is useless. As an astrologer, let me tell you, I don't use ascendant-based things in consultation at all. Why no one teaches it? What do you think? No one knows it? आपको क्या लगता है, किसी को आता नहीं है क्या? इतने तो गधे ज्योतिष की दुनिया में तो लोग नहीं है ना भाई। चलिए 5000 साल में क्या सब गधे ही पैदा हुए? नहीं, अकलमंद लोग तो थे। क्या उनको पता नहीं है कि एरीज का आदमी अग्रेसिव होता है? पता नहीं है क्या? पता तो है ही, सिखाते क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं है? भाई वारामिर को तो पता था, जिंदा था, धरती पे तो रहता था ना वारामिर भैया। कहीं वो क्या मार्स से तो अपनी किताब फेंकी नहीं उसने, धरती पे यहीं रहता था। कल्याण वर्मा भी यहीं रहते थे, मंत्रेश्वर भी यहीं रहते थे, उनको तो पता होगा, क्यों नहीं लिखते फिर? क्योंकि पता है साहब। देखो क्या होता है, जब आप ज्योतिष में नए आते हैं तो हर चीज आपको लगती है वाह 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 वाह। ज्योतिष बन के देखिए ना, 80% चीजों का इस्तेमाल ही नहीं होगा कभी। आप मेरे को एक बात बोलो साहब, एक कंसल्टेशन है घंटे भर की, घंटा भर अच्छा खासा समय होता है, घंटा भर छोटा समय तो 60 मिनट बहुत होता है। प्लस ज्योतिष बन के देखिए 60 मिनट बोलना है, सुनना नहीं है। आपको 60 मिनट के लिए कुछ करने को बोल दो, सोफे पे बैठने को बोलो 60 मिनट में ना, आप परेशान हो जाओगे। बोलना है 60 मिनट आपको, 55 मिनट 50 मिनट तो कम से कम। क्लाइंट क्या बोलेगा, आप ही बोलोगे। उस बोलने के बीच में उसके सवाल हैं बहुत सारे। एक चीज समझिए, जो कैरेक्टर एनालिसिस जो है ये, इसका समय नहीं मिलता। अगर किसी को समय मिल रहा है तो मुझे नहीं पता वो कंसल्टेशन में क्या कर रहा है, भगवान जाने। और कौन आ रहे हैं वो भी भगवान जाने। मे बी क्या है ना, कई कबार कहते हैं नौसिखिए कंसल्टेशंस में। मैं आपको बताऊं 4 लोगों का ग्रेड है। एक है फालतू क्लाइंट, जिसको मैं कहता हूँ ज्योतिष की दुनिया में है, आपका प्रोफाइल फॉलो करते हैं,
माँ बाप का दिया हुआ भरपूर पैसा है, कंसल्टेशन लेंगे, समय बर्बाद करेंगे, उनको कछो काम नहीं। वन टाइप ऑफ पीपल 80% टाइम फ्री कंसल्टेशन मांगते हैं। दूसरे क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, लाइफ में थोड़े मेच्योर होते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, जीवन को जानना चाहते हैं। तीसरा आएगा आपके पास सीरियस बंदा, समस्या से परेशान, समस्या से ग्रस्त, बहुत साल हुए समस्या नहीं खत्म हुई, उपाय चाहता है। चौथा आएगा आईएएस आईपीएस पॉलिटिशियन, आपकी बकवास सुनने का उसके पास समय है नहीं। आप बोलोगे सर 15 मिनट कंसल्टेशन चाहिए, बोलेगा 3 मिनट, काम खत्म। समय नहीं है ना, समय की कीमत होती है भैया, ऐसी बात है, आईपीएस आईएएस के समय की कीमत है। आपके मतलब बेकार बेगारी नहीं बैठा कि कभी भी मैसेज करेगा सर वो आपने दशा का फोटो नहीं भेजा। प्रिडिक्शन से मतलब है मोर उसको, और किसी चीज से कुछ मतलब नहीं उसको, 1% मतलब नहीं उसको। गाइडेंस दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा माथा चाट रहा हूँ, कोई बात नहीं, काम मेरा है। तो क्या है, जो पहला जो दो स्टैंडर्ड है ना, आप उनको कंसल्टेशन बेच पा रहे हैं बाबू, तो किस्मत की खा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, सीरियस बंदा जिंदगी में जिसकी समस्या है, वो मुझको पैसे देके समस्या का समाधान मुझसे सुनने आया है। उसके घर के पीछे तालाब है, गांव के पीछे नदी है, उसकी माँ 4 साल पहले मर गई, बाप कल मरेगा, ये सुनने नहीं आया। स्पष्ट देता हूं मैं आपको उत्तर। आप जब ज्योतिष करने लगेंगे, जब हाथ में, एक मैं बात हमेशा कहता हूँ, दूर से कहना बड़ा आसान हो, क्या था, एक हमारे मामा के लड़के हुआ करते थे, हमेशा कहते थे भैया बंदूक चलानी है, मतलब ऐसे मार दूंगा वैसे मार दूंगा। छोटे थे 8वीं क्लास वाले, मैं सुबह ग्रुप में भी बात कर रहा था, मैंने कहा चल ठीक। आपको पता है, आपने मेरा प्रोफाइल देखा, मुंगेर में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुंगेर में इंसान कम रहते हैं, तमंचे ज्यादा रहते हैं, एकदम पूरा बहुल, मतलब आतंकवाद बहुल इलाका है। एक बार हमारे साथ गए तो हमने पकड़ा ये बंदूक, मैंने कहा लो भाई, 6-7 किलो की बंदूक होती है, पता होगा आपको, देसी कट्टा। उठा नहीं पा रहा था, उनका गोली क्या चलाएगा रे पगले, 6-7 किलो का कट्टा होता है साहब, एक हाथ से गोली नहीं चलती, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। और आपको लगता हो ना कि पीठे पे मारेंगे तो पीठे पे लगेगा, नहीं होता है, इतना शॉर्ट निशाना कुछ नहीं होता है। 3 गोली मारोगे तो एक लगेगी कहीं हाथ में बाएं दाएं जाकर के, बाकी लगने भी नहीं वाली है। नौसिखिए से तो कम से कम नहीं लगने वाली, जो रोज चलाता हो उसके लगी बात। जब आप सच में ज्योतिष बनेंगे ना, कंसल्टेशन में बैठेंगे, जब चार्ट सामने होगा, तब आपको पता चलेगा कि लग्न क्या है, लग्न के क्या फल होते हैं, गुरु चंद्रमा की युति का क्या फल है। इसका कोई मतलब नहीं ज्योतिष में, कुछ मतलब नहीं सर। मैं तो इवन ये भी सोच रहा हूँ, एक जो है ना फ्री सीरीज चालू करता हूँ। कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं सर अपने को आप कंसल्टेशन दे दो, पैसे नहीं है। 2 प्रकार की चीजें होती है, मेरा मूड अच्छा हो तो कर देता हूँ, मूड खराब होता हूँ तो गाली सुनते हैं, और बहुत बहुत मतलब इसी चक्कर में मेरा नाम ही खराब है कि गरियाता बहुत हूँ भरपूर, उम्र का लिहाज किए बिना। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो समस्या में रहे, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एक मैं फ्री सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिसमें कि कंसल्टेशन आपके सामने लूंगा, आप सब चुप बैठेंगे, क्लाइंट रहेगा, मैं रहूंगा, घंटा 1.5 घंटा, और आप देखना, अपनी आंखों से रियलाइज करना कि इस 1.5 घंटे के कंसल्टेशन में कहाँ समय था कि उसको मैं बताता कि तेरा मेष लग्न है तो तेरे बाएं चूतड़ पे नीचे की तरफ काला तिल होगा। पगला गया है क्या यार, उसका प्रॉब्लम सीधा शुरू हुआ कि हाँ सर आपने हमारी पत्रिका देखी, विवाह नहीं हो रहा। हमने बोला हाँ जी पत्रिका देखी, इस समय विवाह हो जाएगा, विवाह में ये समस्याएं हैं आपकी, ठीक है, समस्या कैसे सुधरेगी, उपाय बताया। उसके बाद समस्या क्यों है, उसके बारे में भी पूछा। अच्छा, बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्यों पूछते हैं कि क्यों है, क्यों वाले को भी समझाना पड़ता है। 80% आदमी से क्यों नहीं पूछेगा, पूछेगा सर पहले कोई चांस नहीं है क्या, हो गया ठीक है। उसके बाद मिलेगा कब, दिखने में कैसा होगा, यहाँ ढूंढने क्या, वहां ढूंढने क्या, नाम क्या होगा, ये सब आपसे सवाल पूछेगा। इसका जैसे ही राउंड खत्म हो गया, फिर चालू होगा शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, पति से बनेगी क्या, सास ससुर से बनेगी क्या, पति उसके पति की हमसे बनेगी क्या, बेटी सुखी रहेगी क्या, पैसा कैसा होगा। उसके बाद अगला सवाल लग जाएगा आप पे, बच्चे कैसे होंगे, बच्चा कैसा रहेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सवाल खत्म होते ही नहीं सर। मुझे लगता है कि जो लोग ये ज्योतिष करते हैं क्लाइंट को म्यूट पे रखते होंगे, क्योंकि तू म्यूट रहे, मैं ही केवल बोलूंगा। तो ऐसा है तो शीशा देके कंसल्टेशन किया करो ना, आदमी को क्यों बिठाते हो आगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ सर, देखिए ये ना सर्विस है, आदमी को आदमी के सवाल का जवाब चाहिए। आप एक बात मान के चलिए, 2 चीजें 3 चीजें बताऊं मैं आपको, क्योंकि हम सीरियस उपाय की बात कर रहे हैं। अपना स्वभाव समझ के, अपने घर की सराउंडिंग्स को जान के क्या फायदा।
आप मुझे इतना बात बताओ, मैं सिंपल बात आपसे पूछता हूँ, क्या जान के फायदा, मेरे घर के पीछे गटर है तो है, मैं क्या करूं भाई, है क्या कर सकते हैं, मेरे मुंह पे पिंपल है तो है, क्या करें हम, चमड़ी बदलवा लें, छत से कूद जाएं, क्या करें, मर जाएं क्या, चेंज ही नहीं हो सकता ना। तो क्या होता है, मैं एक बात हमेशा फोन पे सबको कहता हूँ, बकवास बात, बकवास बात। मौसम कैसा है, बारिश होनी चाहिए, उनका ना तेरे कहने से बारिश होगी ना मेरे कहने से बारिश होगी, तो उस पर चर्चा करके कुछ फायदा तो है नहीं भाई। अगर समय फालतू है तो तेरा होगा, हमारा तो है नहीं, कतई कीमती है। पहली बात, इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं। स्वभाव इत्यादि की जो बात है, देखिए फिर से वही चीज है ना, मैस्मरिज्म वाली। आधे घंटे के कंसल्टेशन में अगर मैंने आपको बताया कि आपको गाना सुनना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, आप रात को लेट सोते हैं, ठीक है, वाहवाही बटोरने के लिए बहुत अच्छा, क्लाइंट क्या करेगा उसका, इतना बोलो आप मेरे को, क्या इस्तेमाल है। इससे अच्छा झूठी बोल के पैसे मांग लो ना, बोल दे मेरी माँ बीमार है, कैंसर के इलाज के लिए पैसे दे दे, सीधा बोल देना भाई, क्यों समय खोटी कर रहा है उसका, सीधा मांग ले पैसे, बोले कहा पैसे दे दो। बेकार की फालतू चीज जो इस्तेमाल ही नहीं हो रही कभी जिंदगी में। आपको किताबों का शौक है, क्या करूंगी ये जान के? क्या उसको नहीं पता कि उसको किताबों का शौक है? आप सिंपल बात बोलो यार, आप एज एन एस्ट्रोलॉजर ऐसा क्या बता दोगे जो मेरे को पता नहीं है अपने जीवन के बारे में। जगदीश जी, यू वांट टू से, अच्छा नहीं ना, इट वाज बाय मिस्टेक यार। तो आप किसी क्लाइंट को उसके जीवन के बारे में क्या बता दोगे जो वो जानता नहीं, और उससे भी जरूरी बात है साहब, करेगा क्या, करेगा क्या जान के। मैं बताऊं आपको, मैं आज सुबह सुबह, ये थोड़ा मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ वैसे, सुबह सुबह देखा किसी का कमेंट, तो महिला को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, डिवोर्सी है शायद, भगवान जाने, उसको दिन भर कुछ काम नहीं रहा। एक समय था मुझे भी दिन भर चाटती थी, 6 बजे मैसेज कर देती थी, हाउ आर यू आलोक, व्हाट आर यू डूइंग आलोक, मुझे ये समझना आलोक, मुझे वो समझना आलोक, मतलब दिन भर में कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं, फुल बेरोजगार है। अब वो वीडियो पे कमेंट कर रहा है, सर आपने तो आंखें खोल दी। मैंने कहा आंखें नहीं खोल दी, इसको नौकरी दो, इसको काम दो, इसको। बेरोजगार आदमी की क्या आंखें खोलेंगे आप, इस चीज को समझिए। कोई भी जिंदगी में सफल सक्सेसफुल आदमी जिसको काम है ना जिंदगी में चार, आपकी नहीं सुनने आया सर। कंसल्टेशन का मेन पर्पज ही है, उसने बतानी है समस्या, मैंने देना है समस्या का समाधान, सिंपल सीधी सी बात है। आप एक चीज लिस्ट करना, अगर आपको किसी दुनिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर से अगर कंसल्टेशन लेने का मौका मिले तो आप क्या चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप, अपने बारे में सुनना या समस्या का समाधान जानना, व्हाट विल यू वांट। मेरे सर के बाल सफेद हैं, मेरे कान के नीचे फोड़ा है, मेरे जांघों में खुजली है, मैंने टाइट कपड़े पहने हैं, ये जानना है क्या? यार ओझा गुनिया तांत्रिक के धंधे में जो बेइज्जती है, वो बेइज्जती ज्योतिष के धंधे में क्यों ला रहे हो? थोड़ी सी इज्जत बची है ज्योतिषियों की, अच्छे ज्योतिषियों की बदौलत उसको भी डुबा के मानोगे कि निस्तनाबूद कर दोगे उसको भी, ताकि दुनिया फिर से वही कहने लगे अंधविश्वासी है हिंदू और अंधविश्वासियों के काम। आप जैसे लोगों के चक्कर में हर चीज का नाम खराब हुआ, आयुर्वेद का नाम कैसे खराब हुआ, ऐसे लोगों के चक्कर में। किसी भी साइंस का नाम खराब कैसे होता है, इन चूतियों के चक्कर में। ये पता तो है नहीं क्या कर रहे हैं, सेंसिबली कुछ नहीं मालूम है टेक्निकली, इसी चक्कर में लोग मूर्ति पूजा का अंधविश्वास बोलते हैं। तो ये पता ही नहीं ना क्या कर रहे हैं, मालूम ही नहीं कती जिंदगी में। तो ये वैसे नालायक संतान है जो अपना तो मार खाते ही खाते हैं, माँ बाप का नाम, बाप दादा का नाम और कटाते हैं। यार अपने लिए ना सोचें, थोड़ा सा ना आगे की जनरेशन के लिए सोच लें। बहुत लोगों ने जाने दे दे के इसको बचाया है, क्या बेवकूफी में आप जिंदगी खराब करने में लगे हैं। वॉट एवर। ओके